ओके। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। આપ સગલા હાજરીનું અહલન વ સાલન વ મરહબન કહીએ છીએ કે આપ લોકો વીકેન્ડના દિનમાં એકચ્યુઅલી ઇવનિંગમાં જે અક્સર ફેમિલી ટાઈમ હોય છે એમાં આપ લોકો ટાઈમ નિકાલીને આવ્યા છો આજનો વેબિનાર અટેન્ડ કરવાને. તો शुरू करिए. ये दुआ सी कि खुदा अपना आका ने मौला जानो सी औला सैयदना व मौलाना अबू जाफर सादिक अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन आकानी उमर शरीफ ने क़यामतना दिन लग दराज अने दराज करजो. आमीन. आप मौला अपन मुमिनीन ने वारंवार इरशाद फरमावे છે કે મુમિનીનના इक्तिसादी नहज स्तौरा थाई बुलंद थाई. ये वास्ते इदारतो तिजारतो राबिहा કિસમ કિસમની કોશિશો કરે છે, મુમિનીનના વેપાર પર નજર કરે છે અને મુમિનીનને કઈ કિસમથી મદદ કરવાની કોશિશ કરે છે. આજ ये જ સિલસિલામાં મુમિનીનના બિઝનેસના વાસ્તે ન્યૂ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ શું છે એના વાસ્તે આજનો વેબિનાર આપણે સ્કેડ્યુલ કીધો છે. આજે આપના સાથે જે આપને સ્ક્રીન પર જોવાતું હશે પ્રતીક તિવારીજી જોઈન થયા છે. ये પોતે એક એગ્રીકલ્ચર એન્જિનિયર છે. પોતે MBA ઇન ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ફ્રોમ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ સીએની સ્ટડીઝને તમામ કીધી છે. તમામ તો ના કહેવાય, હજી આગળ એ ઘણું કરી રહ્યા છે. પોતે 21 યર્સ પ્લસનો એક્સપિરિયન્સ છે અલગ અલગ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, જેમાં મોટી મોટી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં એ મહિન્દ્રા સાથે કામ કીધું છે, રિલાયન્સ ફ્રેશ સાથે કામ કીધું છે, આઈટીસી સાથે કામ કીધું છે અને વોલમાર્ટ ઇન્ડિયા સાથે કામ કીધું છે. અને પોતે લિવિંગ ગ્રીન્સના સીઈઓ અને ફાઉન્ડર ફિલહાલ છે. ગવર્મેન્ટ્સના ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ કીધા છે આ ફર્મના સાથે મિલીને, જેના અંદર એ અર્બન ફાર્મિંગ જે આજનો આપણો ટોપિક છે, જેના અંદર બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આ ભાઈ આપણે બતાવશે. અર્બન ફાર્મિંગના શું ફવાઈદ છે અને એનાથી આપણે કઈ રીતે બિઝનેસ લાવી શકે છે એના ઉપર આજની જિકર થશે. ये સાથે प्रतीक तिवारी जी मैं वेलकम करूँ छूँ. थैंक यू प्रतीक जी, आपने टाइम निकाल के इस वेबिनार में आने का इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया है और हमारी जनता को, हमारे लोगों को ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दिखाने का, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने का आपने हमें मौका दिया है. सो वी वेलकम यू विथ ऑल आवर हार्ट्स एंड गिविंग ओवर टू यू to lead our audience and show us the opportunities that we have in this urban farming business. Thank you so much. With that, over to you. Shukriya Tahir Bhai. I hope I am clearly audible. Yes, Pratik ji, you're audible. Thank you. My dear brothers and sisters, thank you very much for sparing your time today. Today I am with you to first and foremost share a dream with you. A dream that I saw 10 years ago, a dream that inshallah is becoming a reality, a dream that is now being adopted by state governments, city governments, and even by the union government. A dream that solves many problems, and a dream that I'm sure will rub off on you by the end of this webinar. I'm sure some of you would feel very excited to become a part of this dream. So my dear brothers and sisters, I am here with you to share my dream, and I will try my best to ensure that your time that you have invested today, you have very graciously taken out time to attend this webinar. I will try my best that your time does not get wasted.
So with this and with the prayer to the Almighty, I would like to start my presentation. And I'm just going to share my screen. So as I said, there's a dream that I'm going to talk about. And it's a dream that solves many problems. So before I move on to the dream, I would like to share with you the specific problems that forced me to think very deeply, and ultimately give up a very comfortable career with a company like Walmart India. So let's just first talk about the problems that forced me to think about this dream. And these are problems that are affecting each one of us. I think broadly speaking, our cities are becoming unlivable. Whether it is toxic pesticides in vegetables, we are using 260 pesticides in India. 56 of them are carcinogenic, and 20 clearly harm children, causing leukemia and blood cancer. So we are eating a little bit of cancer every day. We have now become ticking time bombs. In states like Punjab, people have people start have started thinking that it's just a matter of time when the call from the doctor comes. Things have become pretty desperate in at least some parts of our country, and overall the situation is deteriorating in almost every city. And it's not just pesticides in vegetables. Some of our vegetables are coming from areas which are right next to a city, and what is being used to grow there? Sewage water. And sewage water contains industrial effluents. And what do industrial effluents contain? They contain heavy metals. Unfortunately, this is a bitter scientific fact. It has been proven that the heavy metals that are there in water, they get directly absorbed in the tissue of the vegetable. So it's not just the threat of toxic vegetables in our toxic pesticides in our vegetables. There is also the threat of vegetables containing heavy metals because they are being grown using free flowing sewage water close to our cities. That's one problem. The second is the cities are becoming hotter. For the past 8 consecutive years, we are crossing 45 degrees in many of our cities. This is an alarming situation. The picture that you see on the screen is not just of one city. Almost every city becomes blistering hot during the summer months. And then add to it the problem of air becoming poisonous. Some of the larger cities, people have now started thinking, what is the point of living in a metro city and assuming that we have so many facilities when the air itself that we are breathing is poisonous? Is that what we want to give to our children? And then, if we do start thinking about repairing our cities, making our cities greener, where is the place to grow trees? How can we make our cities greener if that is the condition of urbanization? Now I'm putting this picture on the screen. I'm sure you would have seen this picture. Every time when you go on your rooftop, this is the scenario that you see. And what do you see? You see barren rooftops. You see them catching the sun. You see them heating up the building. In fact, you'll be surprised to know that 65% contribution of heating up of the city is from the rooftops. Rooftops contribute 65% heating up of a city. And why does that happen? Because we have empty, barren rooftops. And what we also see here is a lot of redundant space in the heart of the city. Now that's what you see. And that's what most of us see. But here is what I see.
I see organic farming happening on the rooftops. I see rooftops receiving natural green cover. I see our buildings becoming cooler. And the most important thing, I see the most logical thing happening, that we are able to convert a redundant space, a useless, barren, vacant space inside our cities into an organic food growing space. So, brothers and sisters, my dream is very simple. I see organic homes and I see green livable cities by converting rooftops into organic farms. Now, since we are talking about rooftop farming, let's just go a little bit deeper and find out, is it really beneficial? Specifically, what are the benefits of rooftop farming? The first thing is, when you're putting plants there, they're absorbing a lot of carbon dioxide and producing oxygen. Now, there is a concept of circularity. What you eat should not get wasted, it should be recycled. So you grow vegetable, you use vegetables, you cook vegetables, you generate waste. What if that vegetable waste could be converted into compost and then reused to grow vegetables? And that is very much possible in case of rooftop farming. By doing rooftop farming, सॉरी प्रतीक जी टू बॉदर यू, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप हिंदी भी यूज करें तो। जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे कि छत के ऊपर खेती करने का क्या फायदा है। पहला है, जब हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स है ना एब्जॉर्ब करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप अपने ही घर पे, अपने ही बिल्डिंग में एक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है ना क्रिएट कर पाते हैं। आप जो किचन वेस्ट है ना जनरेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में साइंटिफिकली स्पीकिंग एज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर मैं आपको ये कह सकता हूं कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर जो होता है वो है कंपोस्टेड किचन वेस्ट। तो जिस चीज को हम डेली फेंक रहे हैं उसको कंपोस्ट करके हम वापस ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम अपनी बिल्डिंग्स को पैसिवली कूल कर सकते हैं। पैसिव कूलिंग का मतलब होता है कि आप बिना एनर्जी का यूज किए हुए अपनी बिल्डिंग को कूल कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना शेयर करना चाहूंगा। ये प्रूव किया गया है कि जब डे टेम्परेचर्स 50 डिग्रीज को टच करने लगेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो है वो फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे और हम उस टेम्परेचर लेवल के बहुत पास पहुंच रहे हैं। सो हमारे को ये भी सोचना पड़ेगा कि जब एयर कंडीशनर्स फेल होने चालू हो जाएंगे तब हम अपनी बिल्डिंग्स को कैसे कूल करेंगे। और उसका सिंपल तरीका यह है कि हम खाली पड़ी हुई छतों को ऑर्गेनिक फार्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग रूफटॉप फार्मिंग। उसे कहते हैं पैसिव कूलिंग। और उसके साथ साथ हम अपने सिटी में ऐसे यंग लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि डेली गांव से ना उठ के शहर में आते हैं और छोटे मोटे जॉब्स ढूंढते हैं, जबकि फार्मिंग करना उनके लिए बहुत नेचुरल एक्टिविटी है लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग एक जॉब क्रिएशन की भी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम यंग लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा के और उनसे हम फिर ना अपनी छतों के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। एंड देन जो मोस्ट ऑब्वियस चीज है वो ये है कि आप ताजी ऑर्गेनिक सब्जी उस लिमिटेड स्पेस में लगा सकते हैं। मैं आपके सामने एक मंजर पेश करना चाहता हूं, एक थॉट एक्सरसाइज मैं ना आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि अगर हमारे सिटीज का 10% रूफटॉप का हिस्सा अगर ऑर्गेनिक फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, पूरे सिटी का 10% हिस्सा अगर ऑर्गेनिक फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या मिरेकल हो सकता है, क्या मैजिक हो सकता है।
3,000 टन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, जो कि 15,000 फैमिलीज को डेली ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा, 22,000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन कवर डेवलप हो सकता है सिटी के अंदर। जो अभी हम बात कर रहे थे कि पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, हम बात कर रहे हैं 22,000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन कवर, विच इज इक्वल टू 3,000 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। मतलब अगर सिटी के 10% बिल्डिंग्स के ऊपर भी अगर हम रूफटॉप फार्मिंग कर पाए तो हम इतना बड़ा ग्रीन एरिया डेवलप कर देंगे जो कि 3,000 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। देन 15,000 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा, जिसका मतलब यह है कि इतनी सारी कार्स का जो पोल्यूशन होता है दैट इज इक्वल टू द पोल्यूशन फ्रॉम सो मेनी कार्स, दैट इज फ्रॉम द एमिशन ऑफ 3,000 कार्स। मतलब 3,000 कार्स जितना पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं उतना ही ना प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब आप सोचिए कि हम महंगे महंगे एयर प्योरीफायर्स की बात करते हैं, वो काम पौधे फ्री में आपको करके देंगे। ऑक्सीजन कितनी जनरेट हो सकती है? 2 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बराबर, और 1,500 यंग लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। ये मैं मैक्रो पिक्चर, ये मैं बड़ी पिक्चर आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप ये ड्रीम शेयर करेंगे, अगर आप अपने सिटी में अर्बन फार्मिंग को लेके आएंगे, तो आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी सोचेंगे और आप सिटी लेवल पे भी सोचेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिविजुअल लेवल पे भी इफेक्टिव है और सिटी लेवल पे तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है, और उसी चीज का इफेक्टिवनेस मैं आपको इन नंबर्स में दिखाना चाहता हूं। हमने क्या बनाया है? हमने एक रूफटॉप फार्मिंग पैक बनाया है जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक हमने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम बनाया है। ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है, ये जैसे इसका नाम है पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, ये कंप्लीट फार्मिंग सिस्टम है जो कि कंप्लीटली पोर्टेबल भी है। मतलब आप अपनी छत पे इसको लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इससे आपकी छत के ऊपर कोई परमानेंट आर्किटेक्चरल कोई चेंज नहीं होता, और आप अपनी छत के ऊपर इसको इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी और क्या खास बात है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर बिना मिट्टी का जो ऑर्गेनिक मीडियम है उसमें एक मॉलिक्यूल भी मिट्टी का नहीं है। मतलब हम अपनी ऑर्गेनिक सब्जी बिना मिट्टी के ऑर्गेनिक मीडियम में उगाएंगे, जिससे कि हमारे को ये स्ट्रेस नहीं हो कि अगर हम मिट्टी यूज कर रहे होते हैं तो उसका केमिकल हिस्ट्री क्या है, क्या उसके अंदर कोई पुराने रेसिड्यूज हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम छत के ऊपर अगर मिट्टी का यूज करते हैं तो मिट्टी को जब हम गीला करते हैं तो वो बहुत भारी हो जाती है, और जो छत है वो एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने ये प्रोडक्ट को जब क्रिएट किया तो सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने यही था कि क्या हम बिना मिट्टी के छत के ऊपर ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकते हैं या नहीं, और इसी के लिए हमने ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम क्रिएट किया। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूं, आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये एक दिन में नहीं बने हैं। ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एक ख्वाहिश थी, एक आइडिया था, एक ड्रीम था, और फिर उस ड्रीम का एक बेसिक प्रोडक्ट बना, और फिर धीरे 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 करके उसमें रिफाइनमेंट आता है। लेकिन ये रिफाइनमेंट का जो प्रोसेस है ये 10 साल में ये 100% रिफाइन हो चुका है। नाउ इट्स अ कंप्लीटली इफेक्टिव पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। देन इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। इसके अंदर जो कंटेनर आप देख रहे हैं वो 100% लीक प्रूफ है, और इसके अंदर हम उतनी सब्जी पैदा कर सकते हैं जो कि इतने ही एरिया में अगर हम पैदा करते हैं तो उससे 3 गुना ज्यादा है। तो इसके अंदर प्लांट डेंसिटी भी ज्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। तो इसको कहते हैं पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। मेरा आप सबसे गुजारिश ये है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। मेरे आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि आप चाहे तो वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और या फिर जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो उसके बाद हमारे पास बहुत समय होगा कि हम एक दूसरे से बातचीत करें, और मैं बहुत खुश होऊंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो हमारे रूफटॉप फार्मिंग पैक का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है एक ऑर्गेनिक इनपुट किट, जो कि बेसिकली प्लांट प्रोटेक्शन के लिए है। ये भी एक यूनिक चीज है। इस किट के अंदर कुछ स्प्रेज हैं और कुछ रूट फर्टिलाइजर्स हैं जो कि 100% ऑर्गेनिक हैं। ये एक छोटा सा किट की तरह आपके पास अवेलेबल हो जाती है,
और आप इस किट का यूज करके अपने वेजिटेबल प्लांट्स के पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं अप टू 90% पेस्ट एंड डिजीज। उसके अलावा इस किट के अंदर आपको कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं जो कि आपके पौधे में मिड सीजन और एंड सीजन में भी ऐड होते हैं। एंड सीजन का ऐड होने का मतलब यह है कि जब एक बार आपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में एक सब्जी लगा ली है और नेक्स्ट सब्जी आप लगाना चाहते हैं, तो इन द इंटरिम जो है, जो बीच का जो पीरियड है, उसमें आप न्यूट्रिएंट्स को वापस ऐड करने के लिए कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसान क्या करता है कि किसान 1 से 2 महीने तक अपने खेत को खुला छोड़ देता है, जिससे कि वो नेचुरल तरीके से उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाए। हम 1 से 2 महीने तक अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम को खाली नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स डेवलप किए हैं जो कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वापस से पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स जो है उसको ऐड कर देते हैं, और 3 से 4 दिन के बाद आपका पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है वो नेक्स्ट वेजिटेबल उगाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इसके साथ ही हमने डेवलप किया है एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं प्लांट डॉक्टर प्रोग्राम। ये प्लांट डॉक्टर प्रोग्राम जो है ये सोच के हमने डेवलप किया है कि पूरे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर पे ऑर्गेनिक सब्जी उगाना चाहते हैं। उनको हमने प्रोडक्ट तो दे दिया, लेकिन फिर भी उनके मन में ये डर होता है कि अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे को कौन सपोर्ट करेगा। इसके लिए हमने एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम बनाया है जिसको कहते हैं प्लांट डॉक्टर प्रोग्राम, जिसमें ना केवल आपके पिक्चर्स और वीडियोस के बेसिस के ऊपर आपको सॉल्यूशन दिया जाता है, ओवर एंड अबव दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट सीजन के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाता है कि नेक्स्ट सीजन में क्या लगेगा, इस सीजन में कैसा है ना वेदर चेंज होने वाला है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। वेदर डेटा को पढ़ के उसके हिसाब से आपको है ना सजेशन दिए जाते हैं। तो एक प्लांट डॉक्टर जो है वो आपके साथ रेगुलरली जुड़ के आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर गाइड करता है रियल टाइम। और जिन सिटीज में हमारी फिजिकल प्रेजेंस है वहां पे हम ऑन साइट मेंटेनेंस सर्विसेज भी देते हैं। तो ये चारों चीजें मिला के बन जाती है एक रूफटॉप फार्मिंग पैक, जिसके अंदर कस्टमर को एक छोटा सा खेत मिल रहा है, अपने वेजिटेबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक किट मिल रही है, रेगुलर गाइडेंस के लिए एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार हमारा ऑर्गेनिक एक्सपर्ट आपके घर पे आके चीजों को ठीक भी करता है। लेकिन ये उन्हीं सिटीज में पॉसिबल है जिन सिटीज में हमारी फिजिकल प्रेजेंस है। लेकिन हमारी फिजिकल प्रेजेंस आज की तारीख में बहुत कम सिटीज में है, और ये भी एक हमारा ड्रीम है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिटीज में जाएं, ज्यादा से ज्यादा सिटीज में हमारे पार्टनर्स हों जो कि इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को, इन प्रोडक्ट्स को वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें, जिससे कि उनकी लाइफ्स के अंदर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का फायदा मिले। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम की फोटोग्राफ्स हैं। एक खास बात यह है प्रतीक कि जी, आपकी स्क्रीन आई थिंक आवर सॉल्यूशन रूफ आपकी स्क्रीन आवर सॉल्यूशन रूफटॉप फार्मिंग पैक पे शायद स्टक है। फिलहाल हम सिर्फ 2 सेक्शंस देख सकते हैं, बीच के 2 सेक्शंस एम्प्टी है। होप यू आर ऑन द ट्रैक। ओके, मैं एक बार थैंक यू। वापस से ना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। Tahir bhai, could you confirm that you can see all 4 portions of the rooftop farming pack? Not yet, it's blank right now. Okay.
Can you see the pictures of the portable farming systems? I'm afraid no. Is the slide moving now on the screen? Yes, I can see fruit growing bag. Okay. Can you now see the pictures of the portable farming systems? What I see on the screen is the fruit growing bag. And then Okay. towards the right, it has MS frame, HDP containers, other parameters of it. Okay. Okay, I put a slide organic farming on land. I hope this is visible now. Sorry, Pratik ji, it is blank. Taibai, should I rejoin? Sure, we can do that. Let's do that quickly in the interest Yeah. of time. Also, आप अपना जी जी presentation मुझे भी अगर आप मैसेज कर दे WhatsApp कर दे तो I'll see if I can present it alternately. जी 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 फर्स्ट आप rejoin करने की कोशिश कीजिए. Sorry Sagla Sahibo, due to some technical glitch, Pratik ji will rejoin. Request to remain patient. Within a minute, we will restart. Stay tuned, please. In the in the meantime, ઘણા ભાઈઓએ ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા છે. ये ક્વેશ્ચન્સની અમે નોટ લઈ રહ્યા છે અને આપણે કોશિશ કરશું કે સેશનના આખરીમાં આપણે આ સગલા ક્વેશ્ચન્સને આન્સર કરી શકે.
Juzar bhai, to answer your question, we have targeted this to close by 9. Inshallah, we'll try to achieve that. Please consider આજે ટાઈમ આઉટ થયો છે. Yet we will try કે આપણે 9 વાગ્યા સુધી યા મેક્સ આપણે એને તમામ કરવાની કોશિશ કરશું. વેલકમ બેક ઠીકજી.
We'll take a minute, bhaiyo. Thank you for being patient. Okay, Pratik ji, welcome back again. I can see your screen. Okay, I'm just sharing my screen that way. Is my screen visible? It is still blank. ફાતિમા બેન આ ભાઈને ખબર નહીં લિંક એને નહોતી મળી રહી મેં મારી લિંક હમણાં એને આપીને જોઈન કરા છે એનું પ્રેઝન્ટ નહીં થઈ રહ્યું એનાથી ઓકે ચલો મેં એને કહું છું કે let's continue without Tahir bhai, can you see my screen? No, Pratik ji, I'm afraid I still cannot see your screen. Is it possible कि हम without screen आगे बढ़े? Because we are losing out on time. Okay. So, can I just address the questions directly? Yeah, that should do. Okay, so I'll just share just the remaining portion that I was not able to show on the screen. What I really wanted to show was a little more about the portable farming system, and also the fact that when we are doing urban organic farming, we are also doing organic farming on land, whether it is kitchen garden or anybody has got an empty plot or a farmhouse. So there are techniques to grow organic vegetables on ground, which is called a raised bed farming technique. And then besides urban organic farming, I also wanted to show you about what green walls are. So that is called vertical greenscaping. And there are two concepts. One is called green walls and the other is called living billboards. Pratik ji, may I request Hindi, sir? I'm sorry. So मैं अर्बन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा मैं ग्रीन वॉल्स के बारे में भी बात करना चाहता था। ग्रीन वॉल्स दो तरीके की होती हैं, इंडोर ग्रीन वॉल्स एंड आउटडोर ग्रीन वॉल्स। एंड उसके अलावा एक और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं लिविंग बिलबोर्ड। सो लिविंग बिलबोर्ड का मतलब होता है कि वी कैन राइट अ मैसेज, हम एक मैसेज जो है वो हम प्लांट से लिख सकते हैं। तो लिविंग बिलबोर्ड के अंदर एक तो ग्रीन वॉल होती है जिसके अंदर 100% प्लांट्स लगे हुए होते हैं। लिविंग बिलबोर्ड के अंदर केवल उतने ही प्लांट्स लगे हुए होते हैं जितना कि लेटर्स है ना, हमारे को लेटर्स में है ना दिखाने होते हैं, जिससे कि एक मैसेज दिख जाए प्लांट्स के साथ। तो उसको है ना लिविंग बिलबोर्ड कहते हैं। अर्बन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसमें बेसिकली 3 वर्टिकल्स होते हैं। एक होता है रूफटॉप फार्मिंग एंड बेसिकली अर्बन फार्मिंग, जिसके अंदर हम छत के ऊपर है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बालकनी में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और
हम लैंड के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। देन दूसरा जो वर्टिकल है वो है ग्रीन वॉल्स का। ग्रीन वॉल्स के अंदर जो है वो हम बात करते हैं इंडोर ग्रीन वॉल्स की और आउटडोर ग्रीन वॉल्स की एंड लिविंग पिलपोर्ट का। तो अर्बन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस के अंदर ये बेसिकली ये अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और इनसे रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ताहिर भाई, मैं आपसे एक बार ये पूछना चाहता था कि मैं किस तरीके से, बिकॉज बहुत सारे लोग है ना अपना क्वेश्चंस है ना पूछना चाहते हैं, तो और चैट बॉक्स में काफ़ी है ना क्वेश्चंस ऊपर भी है ना चले गए हैं। तो इज इट पॉसिबल कि या तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो कोई है ना मेरे को गाइड कर दें, कोई पढ़ दें तो मैं ना एक एक करके उनको आंसर कर सकता हूँ, या जो भी क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ मैं उन्हीं के बेसिस के ऊपर आंसर करूँ। सो ताहिर भाई, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं डायरेक्टली उनको ही आंसर करूं, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे कि वो चैट बॉक्स में ऊपर रहना चले गए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस के नोट लिए हैं। आई विल रीड द क्वेश्चंस हाँ जी, हाँ जी, ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक। जी जी। Okay, so the first one that I have noted is, does urban farming include permaculture principles? I don't know what does that mean, but I want you to be able to answer. No, urban farming does not include permaculture principles. देखिए, permaculture जो होता है that is लैंड को रिजुविनेट नेचुरल तरीके से ना रिजुविनेट करने का है ना तरीका होता है पर्माकल्चर, जिसमें अलग अलग है ना प्लांट स्पीशीज, ट्री स्पीशीज है ना लगाए जाते हैं जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी वो अपने आप रिजुविनेट हो जाए। लेकिन अर्बन फार्मिंग के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि हम सॉइललेस मीडियम के साथ है ना काम कर रहे हैं और छत के ऊपर पर्माकल्चर एज सच है ना पॉसिबल नहीं है। हमारा फोकस अर्बन फार्मिंग में रहता है कि जो बिल्डिंग्स के अंदर लिमिटेड स्पेस है, चाहे वो बालकनी का स्पेस है या किचन गार्डन का स्पेस है या छत का स्पेस है, हम उस स्पेस को जो है वो एक ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसिंग स्पेस में कन्वर्ट करें। तो इसलिए पर्माकल्चर के टेक्निक्स जो हैं वो अर्बन फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं होते। ओके, थैंक यू प्रतीक जी। आई थिंक आपने एक दूसरा क्वेश्चन भी आंसर कर दिया। एक भाई ने पूछा था कि What if we don't have terrace? तो आपने कहा कि हम बालकनी में भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए, ये इस क्वेश्चन को मैं एक बार एक और तरीके से एड्रेस करना चाहूंगा कि कई लोग है ना फ्लैट्स में रहते हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि उनकी बालकनी जो है वो सन फेसिंग है, क्योंकि हमारे को ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे को बालकनी में गार्डनिंग करनी है तो वहां पे है ना सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारे को अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमारे फ्लैट में है ना रूफ नहीं है, हमारे फ्लैट में है ना सनलाइट अवेलेबल नहीं है, वो बात ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल की बिल्डिंग की इतनी बड़ी जो छत है, क्या उसके ऊपर एज अ कम्युनिटी हम कम्युनिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं? क्या हमारे जो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है उसकी जो कॉमन रूफ टॉप है, क्या हम उसके ऊपर एज अ कम्युनिटी हम कलेक्टिवली एज अ ग्रुप हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि आपका खुद का स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव स्पेस नहीं है एक फ्लैट में अगर आप रहते हैं, लेकिन कॉमन स्पेसेस को तो यूटिलाइज किया जा सकता है, चाहे वो आपके अपार्टमेंट ब्लॉक के बिल्डिंग का रूफटॉप हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए हमारे को। जी ताहिर भाई। थैंक यू प्रतीक जी। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, are there government permits required to urban farm on rooftops? देखिए, जो बिल्डिंग का जो सिविल कंस्ट्रक्शन कोड है उसमें परमिसिबल वेट ऑन द आरसीसी स्लैब, जो रूफटॉप होती है वो एक आरसीसी स्लैब है, तो उसके ऊपर जो परमिसिबल वेट होता है वो होना चाहिए 25 kgs पर स्क्वायर फीट। और जो हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है वो है ना वेट डालता है 12 किलो पर स्क्वायर फीट। तो पहली चीज तो ये है कि वेट रिस्ट्रिक्शंस और परमिसिबल वेट की वजह से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट चीज।
दूसरी चीज ये है कि रूफटॉप फार्मिंग करने के लिए कोई भी है ना गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट्स खुद है ना आगे बढ़ के कह रहे हैं कि आप लोग रूफटॉप फार्मिंग करिए। हम लोग बिहार गवर्नमेंट के साथ काम करें जो कि 50% फाइनेंशियल सब्सिडी दे रही है पटना के अंदर रूफटॉप गार्डनिंग करने के लिए। हम लोग बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हैं जो कि बीएमसी के जो स्कूल है उनके टेरेस के ऊपर वो फार्मिंग करना चाहते हैं। और जब गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, जब वो ये डिसीजन लेते हैं कि छत के ऊपर रूफटॉप फार्मिंग करनी चाहिए, तो वो पहले पूरे का पूरा टेक्निकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो मैं आपको इस बात का पूरा रीअश्योरेंस दे सकता हूं कि आपको कोई गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, thank you so much. Moving on to the next one. How to check if our roofs can bear how much load? देखिए अगेन जो बिल्डिंग का जो सिविल कंस्ट्रक्शन कोड होता है उसमें रूफटॉप्स 3 तरीके की है ना कैटेगराइज करी होती हैं, हाउसेस, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड वेयर हाउसेस। सो सबसे ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी वेयर हाउसेस की होती है और सबसे कम होती है हाउसेस की। लेकिन हाउसेस का ही मैंने बताया है कि 25 kgs पर स्क्वायर फीट जो है वो हाउस की है ना परमिसिबल लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। और हमारा जो इक्विपमेंट है वो 12.5 किलो पर स्क्वायर फीट का ही वेट एक्सर्ट कर रहा है। सो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ये हम पिछले 10 साल से करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो ये सिटी और स्टेट की गवर्नमेंट्स है ना इस चीज को है ना अडॉप्ट कर रही। जी ताहिर भाई। Okay, so next question is, it says what is yield per square feet in portable farming system? हाँ, जो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है उसका जो हमारा जो स्टैंडर्डाइज जो साइज है वो है 10 फुट बाय 4 फुट का। और एक 10 फुट बाय 4 फुट के अंदर आप अप टू 75 टू 80 केजीज की ईल्ड ले सकते हैं एक साल में। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम से जो आउटपुट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन से नेचर ऑफ वेजिटेबल्स आप लगाना चाहते हैं। अगर जैसे सर्दियों में आप लीफी वेजिटेबल्स है ना ज्यादा लगाना चाहेंगे तो आपको वो 80 केजीज है ना आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये 80 केजीज का जो 75 टू 80 केजीज का जो फिगर आया है ये इस बेसिस के ऊपर आया है कि जहां पर हम लार्ज इंस्टॉलेशन करते हैं, जहां पे 10 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम 20 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगाते हैं, वहां का एवरेज यील्ड जो है वो आता है 70 से 80 किलो के बीच में। तो ये एक इंडिकेटिव फिगर मैं आपको दे रहा हूं एक साल का एनुअल प्रोडक्शन का। लेकिन ये हमारे को ध्यान रखना है कि जो चॉइस ऑफ वेजिटेबल है उसके ऊपर भी प्रोडक्शन का वेट जो है उसके ऊपर है ना इफेक्ट आएगा। जी ताहिर भाई। Thank you, Pratik ji. All right, moving on to the next one. So, a lot of questions on what will be the cost, what are the business opportunities. Straight to the point. भाई business क्या है? जी जी जी। देखिए जहां तक आप कॉस्ट का बात है, किसी भी है ना बिजनेस में 2 तरीके का कॉस्ट होता है। मतलब लेट्स से प्राइस होता है। कॉस्ट तो मटेरियल का होगा। प्राइस की हम बात करें तो 2 तरीके के प्राइस होते हैं। एक होता है रिटेल प्राइस जिसको हम एमआरपी कहते हैं जो कि पब्लिश्ड है ना रेट होता है। और दूसरा होता है आपके चैनल पार्टनर का प्राइस। तो चैनल पार्टनर एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, स्टॉकिस्ट भी हो सकता है, और हमारे केस में जैसे उसको हम कहते हैं सिटी बिजनेस पार्टनर या सिटी फ्रेंचाइजी। तो 2 तरीके के है ना प्राइसेस अवेलेबल हैं हमारे हर प्रोडक्ट के लिए। एक है एमआरपी और एक है फ्रेंचाइजी प्राइस। फ्रेंचाइजी प्राइस और एमआरपी के बीच का जो मार्जिन होता है उसका भी एक पूरा टेबल बना हुआ है क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हैं कि मार्कअप मार्जिन जो होता है ओवर एंड अबव द प्राइस, मतलब अगर हम आपको है ना कोई रेट पे दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर कम से कम 40 से 45% ऐड करके आप है ना एमआरपी पे है ना उसको बेच सकते हैं। मतलब एमआरपी और फ्रेंचाइजी के बीच में अराउंड 40 टू 45% का मार्जिन अवेलेबल होता है। लेकिन इसके बारे में मेरी दरखास्त ये होगी कि जो बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस मॉडल है,
उसका हमने बहुत डिटेल में फाइनेंशियल प्लान बना रखा है। जो भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो हमसे ना एक बार कनेक्ट करके और पूरा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का है और आपको 7 से 8 महीने में वो पैसा वापस आ जाता है, तो ये मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर मैं नहीं रखना चाहता। इसके पीछे बहुत इलेबोरेट कैलकुलेशन है, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, आप एज अ फ्रेंचाइजी अपने सिटी में डीलर नेटवर्क किस तरीके से ना डेवलप करेंगे, मंथ ऑन मंथ आपके नंबर ऑफ डीलर्स है ना कैसे बढ़ेंगे, डीलर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल होगा तो वो अपने पॉइंट ऑफ सेल से क्या क्या बेचेगा, आप डायरेक्टली एज अ फ्रेंचाइजी जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स करेंगे वो कितनी करेंगे। तो एक पूरा इलेबोरेट फाइनेंशियल प्लान है फॉर द फ्रेंचाइजी एंड मेरे को खुशी होगी मैं आपसे ना उसको डिटेल में शेयर करूं। Okay, one of the question is very interesting. Do you have any course on this where we can learn in practical way? So I remember हमने इस बारे में भी बात की थी प्रतीक जी। जी 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 देखिए हमने एक भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है उसको मैनेज कहते हैं। दिस इज इंस्टीट्यूट फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, ये हैदराबाद में है और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज इट्स कॉल्ड सेंटर फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड इसका शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड मैनेज। तो मैनेज के साथ वी आर डेवलपिंग अ कोर्स, हम एक कोर्स डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जो कोर्स है इसमें ना केवल रूफटॉप फार्मिंग एंड अर्बन फार्मिंग के बारे में हम बताना चाहेंगे, अर्बन फार्मिंग से रिलेटेड जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में भी डिटेल से ना उसमें चर्चा होगी, डिटेल से उसमें बताया जाएगा। इनफैक्ट बहुत डेप्थ में ये भी बताया जाएगा कि आपकी सिटी क्या इस फार्मिंग को करने के लिए सूटेबल है या नहीं, क्या आपको अपने सिटी में अर्बन फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो वो एक काफी इलेबोरेट कोर्स है ना हम लोग डेवलप कर रहे हैं और उसके बारे में ताहिर भाई से भी डिस्कशन हुआ था, तो वो हम आप लोगों को भी है ना शेयर करने में हमारे को खुशी होगी। आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। Thank you. All right, since it's already 9:01, I will be sharing a feedback link. ચેટના ઉપર મેં એક ફીડબેક લિંક શેર કરું છું, વहाँ પર આ સેશનનો ફીડબેક બી આપ આપી શકો છો અને એના રિલેટેડ લાસ્ટના અંદર સજેશન્સના અંદર આપનું કોન્ટેક્ટ ડિટેલ યા કે આ વેબિનારના અંદર હજી આપને શું બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી જાણવું છે, 1-to-1 કનેક્ટ કરવું છે, તો એ આપ આપના કમેન્ટ્સ લખીએ અને વી વિલ ગો થ્રુ ઓલ ધ કમેન્ટ્સ એન્ડ વી વિલ ટ્રાય ટુ કનેક્ટ વિથ યુ। એ આગળ આપણે કનેક્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની કોશિશ કરશું। સો સગલા હાજરીનસી ઇલ્તિમાસ છે કે ફીડબેક લિંક નીચે શેર કરવામાં આવી રહી છે ચેટ સેક્શનમાં, આપ પ્લીઝ આપનો ફીડબેક એમાં આપીએ અને આપની જે ક્વેરીઝ છે या જે કન્સર્ન્સ છે એ એના ઉપર ફિલ કરીએ। એ લિંકને અમે ગો થ્રુ કરશું અને અમે આપને રિસ્પોન્સ કરશું એના ઉપરથી ઇન્શાલ્લાહ। It is 21:02. We'll just check out for a few more questions if there are any. मैं ફીડબેકની લિંક પોસ્ટ કરી દીધી છે, આપ લોકો ફીડબેક ફોર્મ ફિલ કરીને આપની ક્વેરીઝ અને કન્સર્ન્સ શેર કરી શકે છે। આઈ એમ રિપીટિંગ, વી વિલ ગો થ્રુ these feedbacks and we will connect with you in person inshallah। We have one technical question. It is asking, isn't soilless practice an artificial medium to grow plants? No, not at all. जो सॉइललेस मीडियम हमने तैयार किया है इसके अंदर 100% ऑर्गेनिक ओरिजिन की चीजें हैं, जैसे पोल्ट्री मैन्योर, काउ यूरिन, वर्मी कंपोस्ट। इसमें पोरोसिटी इंक्रीज करने के लिए हमने कोकोपिट भी यूज किया है। कोकोपिट के बारे में मैं आप सब लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, क्योंकि आप में से कई लोग जो प्लांट लवर्स हैं शायद उसको यूज भी करते होंगे, बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि कोकोपिट को बिना बफर किए कभी भी यूज मत करिएगा। सो हमारा जो ऑर्गेनिक मीडियम है दैट इज 100% नेचुरल एंड इट इज कमिंग फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन्स।
उसके अंदर माइक्रोबियल कल्चर्स हैं। इनफैक्ट जो 10 साल का मैंने आपको जो एवोल्यूशनरी पीरियड बताया, वो 10 साल का एवोल्यूशनरी पीरियड इसी वजह से था कि इतने सारे ऑर्गेनिक ओरिजिन की चीजों को करेक्ट कॉम्पोजिशन में कैसे डाला जाए कि यही ऑर्गेनिक मीडियम जो है वो चेन्नई के क्लाइमेट में भी है ना बेस्ट प्रोडक्टिविटी दिखा सके और जम्मू के क्लाइमेट में भी बेस्ट प्रोडक्टिविटी दिखा सके। इस काम को अंजाम देने के लिए हमारे को 10 साल लगे हैं, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो ऑर्गेनिक मीडियम है वो इतना कंप्लीट है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन में उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है, और ये 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। थैंक यू प्रतीक जी। सो वी ऑल्सो हैव इंटरनेशनल प्रेजेंस। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि व्हाट अबाउट प्लेसेस आउट ऑफ इंडिया, वुड द सॉइल अल्टरनेट बी शिपिंग फ्रॉम इंडिया एट एवरीवन सीजनल चेंज? देखिए, मेरा सजेशन ये होगा, अभी हम जैसे गल्फ कंट्रीज में है ना, हम पार्टनरशिप के बारे में है ना डिस्कशन कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ। तो उसमें है ना डिस्कशन में ये निकल के आया कि जो शुरुआत का जो कंसाइनमेंट है, जिसके बेसिस के ऊपर आप वहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो 100% सारे के सारे कंपोनेंट्स है ना इंडिया से आप तक है ना पहुंच जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोकल सोर्सिंग करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके कंट्री से ही है ना लोकल सोर्स करें। लेकिन मेरा उसके बावजूद भी मानना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि इंडिया स्पेसिफिक हैं, यहीं पे वो अवेलेबल हैं, लेकिन उसका जो क्वांटम होगा, उसका जो बल्क होगा वो बहुत छोटा होगा। तो बेसिकली 2 स्टेज में हम प्लान कर सकते हैं। शुरुआत में जब तक हमारे को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके मार्केट में अवेयरनेस जनरेट करनी है, तब तक तो है ना इंडिया से पूरा कंसाइनमेंट जाए, और फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए हम वहां पे लोकल सोर्सिंग और लोकल वेंडर्स को आइडेंटिफाई करें और फिर लोकल सोर्सिंग से बिजनेस को आगे लेके जाए। जी ताहिर भाई। थैंक यू प्रतीक जी। ओके, सो हमने एक क्वेश्चन इस तरह से है कि हमने रूफटॉप की बात की, हमने बालकनीज की बात की, हमारे पास बैरन लैंड है, क्या वो लैंड को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं और कैसे? देखिए, लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचने से पहले आपको ये सोचना जरूरी है कि आप उसके आउटपुट का है ना क्या करना चाहते हैं। सपोज आप केवल सेल्फ कंजम्पशन के लिए ना उसको यूज करना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली है ना उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक मेथड्स जो हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं, उसका इस्तेमाल करके आप अपने जो बैरन लैंड है उसके ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा ये है कि आप उस आउटपुट को आप सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बना के आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या उसको बेचना चाहते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आज की तारीख में ज्यादातर स्टेट्स के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं, वहां पे स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसीज खुल गई हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप एक बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट के ऊपर आप स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए करना चाहते हैं तो आप है ना इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। जहां तक अगर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बैरन लैंड है और उसके ऊपर पहले कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोबियल कल्चर्स हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम होगा। एंड इनफैक्ट अगर वो बड़ी एक्सप्लॉइटेड लैंड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा है ना केमिकल्स यूज किए हैं, तो डेफिनेटली उस मिट्टी को जिंदा करने के लिए, उस मिट्टी का माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए हमारे को 3 फेजेस में है ना काम करना होगा। फर्स्ट जो ईयर होगा उसमें हम अपने ऑर्गेनिक इनपुट्स, बायो फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड ईयर में हम 25% उसको कम कर देंगे, एंड थर्ड ईयर में हम उसको 50% भी कम कर देंगे, तो भी है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मैं मशवरा आपको देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी बैरन लैंड से सीरियल्स का या पल्सेस का या ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप इस बात के लिए मेंटली तैयार रहें कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो अगर आप 100% ऑर्गेनिक करेंगे तो आपका प्रोडक्शन 50% गिर जाएगा। लेकिन
वेजिटेबल प्रोडक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें खूबसूरत बात यह है कि इवन इफ आप अगर 100% ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज करके वेजिटेबल प्रोडक्शन करेंगे तो आपका वेजिटेबल प्रोडक्शन कम होने की जगह एक्चुअली में ज्यादा हो जाएगा। ये मैं अपने 10 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। जी ताहिर भाई। श्योर, थैंक यू प्रतीक जी। आई थिंक मोस्ट क्वेश्चंस आर रिपीटेड जो आपने आंसर कर दिए हैं। मेरा आप सबसे एक गुजारिश ये होगी कि जो फीडबैक फॉर्म का जो लिंक ताहिर भाई ने शेयर किया है चैट बॉक्स में, आपके क्वेश्चंस और आपके कमेंट्स आप उसमें लिखेंगे तो भी हम इंडिविजुअली आपसे वापस है ना रिकनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, वन क्वेश्चन वाज कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के अलावा भी हम दूसरे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं अर्बन फार्मिंग में। देखिए, अर्बन फार्मिंग का अल्टीमेट पर्पस होता है कंजम्पशन। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि फ्लावर्स के बारे में पूछा गया है, डेफिनेटली फ्लावर्स को ना ग्रो किया जा सकता है। इनफैक्ट फ्लावर्स के अलावा मेडिसिनल प्लांट्स को भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन अर्बन फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले क्लियरली समझ लें कि अर्बन एरियाज में लिमिटेड स्पेस में हम फूड ग्रोइंग है ना कैसे कर सकते हैं, पहले उसको प्रायोरिटी देना है हमारे को। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो ऑर्गेनिक मीडियम है उसमें आप फ्लावर्स डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो ये होता है कि हम मैरीगोल्ड जो है वो तो हम जानबूझ के ना इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैरीगोल्ड जो है वो एज अ ट्रैप क्रॉप है ना काम करता है। तो फ्लावर्स आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हमने खूब ग्रो किए हैं, स्टीविया ग्रो किया है, लेमन ग्रास ग्रो किया है, गिलोय ग्रो किया है, अश्वगंधा ग्रो किया है, कालमेघ ग्रो किया है। सो आप बहुत सारे ना इसमें ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट जो रूट वाले जो मेडिसिनल प्लांट्स है जैसे अश्वगंधा है वो तो इसमें और भी अच्छा ग्रो होते हैं क्योंकि ये काफी पोरस है। तो काफी वैरायटी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सबसे पहले तो हम साफ खाना खाएं, सबसे पहले तो हम उस स्पेस को फूड प्रोडक्शन के लिए ना यूज करें, बट डेफिनेटली आप बाकी चीजें भी उगा सकते हैं। ताहिर भाई आप म्यूट पे हैं। सॉरी माय मिस, थैंक यू। ओके, सो वी जस्ट रिसीव वन फीडबैक स्टेटिंग कि हमारे फीडबैक की लिंक के अंदर कोई कमेंट्स या सजेशन का ऑप्शन नहीं है। रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिफ्रेश, ये ऐड हो चुका है। थैंक यू। ओके, लेट्स लुक एट अदर क्वेश्चन इफ वी हैव एनी। आई डोंट नो द रेलेवेंस, बट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कैन वी ग्रो चंदन एट द लैंड ऑफ कच्छ? मैं इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है सैंडलवुड के बारे में। इसके लिए मैं आपसे ना माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा फोकस जो है वो सॉइललेस पीटीएम में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगाने का ही है ना मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। Oh, thank you so much, Pratik ji, for your kind answer. We really appreciate. Okay. So again, काफ़ी क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे हैं कि भाई हमें
हमारे 1200 स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट रूफटॉप के लिए कुछ खरीदना है, या इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट से कि प्लीज़ आप फीडबैक फॉर्म भरिए। इसके थ्रू हम आपसे कनेक्ट करेंगे। प्रोबेबली देयर विल बी मल्टीपल सेशंस। ये एक सेशन में शायद हम सारा कुछ कवर ना कर सके, फाइनेंशियल्स आपको बता ना सके। ये 1-to-1 मीटिंग में या मे बी इसके फॉलोअप वेबिनार में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे बेसिस ऑन व्हाट क्वेश्चंस वी आर रिसीविंग इन द फीडबैक फॉर्म। So it's already 21:13. I really appreciate everyone's time. जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं सगला मुमिनीन भाइयों बहनों, आपનું શુક્ર અરજ કરું છું કે આપ લોકો વક્ત નીકાળીને આ વેબિનારમાં હાજર થયા। અપોલોજીઝ પેશ કરું છું કે વચ્ચે થોડું ટેકનિકલ ગ્લિચ આવ્યું, જેના સબબથી જે અમે ચાહતા હતા એ રીતે પ્રેઝન્ટ ના થઈ શકું। આના આઈંદા ફોલોઅપ વેબિનાર્સ અગર આ ટોપિક પર થવાના હશે, અમે પ્લાન કરી શકતા હશું તો ડેફિનેટલી આપને ખબર કરવામાં આવશે અલગ અલગ મીડિયમ્સના થ્રુ, આપના મોઝેના અંદર તિજારત રાબિયાના મેમ્બર્સના થ્રુ એ ચીઝ આપને પહોંચાડવામાં આવશે। आई वेरी मच थैंक यू प्रतीक जी कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारी इस ऑडियंस के साथ आप सामने आए, आप हमसे जुड़े और ये अवेयरनेस सेशन आपने हमारे लिए कंडक्ट किया। We look forward for more such sessions and productive sessions with business engagements, inshallah. आखिर में दुआ करी લઈએ કે જે મોલાની ખુશી છે કે મુમિનીન વેપાર તરફ આવે અને વેપારમાં યુનિકનેસ હોય, તો ये આજે अर्बन फार्मिंगનો એજન્ડા છે, એનાથી આપણે કોશિશ કરીએ કે ये अचीव કરી શકે। खुदा अपना मौला सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन आकानी उमर शरीफ ने क़यामतના દિન તક दराज અને दराज करजो। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। એન્ડ કોલ કરી દઉં છું મેં। ઓકે।